today we are going to start our second topic of chapter, how do organisms reproduce. So before we already discussed about asexual types of reproduction in organisms, then second was sexual reproduction in plants. Today we will see the sexual reproduction in animals, that is in human beings. So first of all we will learn about puberty. So what is puberty? So puberty is the period in adolescence, means whenever boy or a girl reaching the age of adolescence, means it is about 10 to 12 years in girls and 12 to 14 years in boys. So the maturity period is different according to their environmental condition, their food and nature of their genetics. So what are the changes occurring in the body of boys? So first of all, in terms of boys, they are seeing the facial hair growth, their growth in armpits and genital areas, their voice is getting cracked and changes. Then in females or in girls, they are also facing this same issue. They are seeing the hair growths in armpits and genital areas. Then the second thing, they are starting menstruating. So what is menstruation? We will discuss it later on. So first we will see the sexual reproduction in human beings. Then other changes are also there. You can go through with that increasement in breast also takes place in females. Then first we will see the gametes or processes in reproduction. Processes in reproduction. So first of all, first process is formation of gametes. Formation of gametes. So what are the gametes? Sperm and egg. Like in plants also we have already discussed how gametes are formed. So in human beings, formation of gametes means sperm and ovum. Ovum from female and sperm from male. Then second is fusion of gametes. Fusion of gametes means fertilization. Then development of an embryo. So first is formation of gametes. So there are two gametes which are formed in human beings. First gamete is egg, which is produced inside the female body. So it is released from an ovary. So we will discuss it later on, what is the structure of female reproductive system and male reproductive system. Then sperm, which is male gamete produced by male. So first we will discuss about male reproductive system. तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखते हैं डायग्रामेटिकली, सो इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, जो कि एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम में जो कि बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना हुआ है. तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट ऑर्गन है, हम स्टार्ट करेंगे टेस्टिस से, जहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. तो फर्स्ट ऑर्गन इज टेस्टिस. तो टेस्टिस, जैसे ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज टेस्टिस. यहाँ पर क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन होता है. जैसे किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए. तो मशीनरी कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये टेस्टिस. तो ये क्या होते हैं? पैड में होते हैं. दो टेस्टिस होते हैं जो कि एक
पाउच के अंदर कवर्ड होते हैं, सेफ होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, पैड ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उनका काम क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन। और ये कहाँ पर होते हैं, बॉडी के बाहर होता है, बिकॉज बॉडी का टेम्परेचर और इनका टेम्परेचर थोड़ा सा अलग होता है ना। इनको क्या चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, स्पर्म मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, और टेस्टिस किससे कवर्ड है, स्क्रोटम से। देन उसके बाद ये जो टेस्टिस है, इससे कनेक्टेड क्या है, वैस डिफरेंस, इससे कनेक्टेड है वैस डिफरेंस। अब इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन क्या है, यहाँ से जो भी स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है उसको ये कलेक्ट करेगा और लेके जाएगा इस ट्यूब के जरिए, है ना। तो ट्यूब के थ्रू लेके जाएगा, तो ये ट्यूब का नाम क्या है, वैस डिफरेंस। ठीक है, अब ये जो ट्यूब जा रही है ये कहाँ पे मिल रही है, ये इस वाले रीजन पे, जिसमें और भी कनेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे ये यूरेटर है। यूरेटर किसका पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो यूरेटर का फंक्शन क्या है, टू कलेक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी एंड पास इट इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो यहाँ पे यूरिन पास हो रहा है और यहाँ पे यूरिन स्टोर हो रहा है, लेकिन और ठीक है, उसके बाद ब्लैडर से क्या निकलता है, यूरेथ्रा। तो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये क्या है, ग्लैंड्स है, ये अपना सिक्रेशन पोर करते हैं यहाँ से जो भी स्पर्म आ रहा है, तो ये इसको क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो ट्यूब जा रही है वो ट्यूब कहाँ पे मिल रही है, ये यूरेथ्रा, है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो यूरेथ्रा है कॉमन पासेज है, किसके लिए, स्पर्म और यूरिन के लिए ये कॉमन पासेज है। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट क्या था, यहाँ से टेस्टिस से क्या हुआ, स्पर्म फॉर्मेशन हुआ। देन टेस्टिस के बाद वो जो फॉर्मेशन हुआ था स्पर्म का, वो किसके थ्रू गए, वैस डिफरेंस के थ्रू पास होते गए, और उन्हीं के साथ में यहाँ पर क्या है, फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, तो ये जो सेमिनल वेसिकल है ये क्या करता है, जैसे स्पर्म जा रहे हैं, अब इनको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना, बिकॉज इनको भी काफ़ी आगे सरवाइव करना है। तो ये क्या करते हैं, सेमिनल फ्लूइड इसके अंदर ऐड कर देते हैं स्पर्म में। ठीक है, जो कि मिल्की टाइप का होगा, वो उसमें ऐड कर देंगे एंड न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे। प्लस ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये भी इसके अंदर क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देता है। तो वो बन जाता है स्पर्म प्लस न्यूट्रिएंट्स से मिलके बनता है सेमेन। ठीक है, तो यहां से स्पर्म निकले थे, किसके थ्रू गए थे, वैस डिफरेंस के थ्रू। कहां पर गए वो, यहां से पास होते होते, और वहां पर किसने ऐड किया अपना सिक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स। अब यहां से जब भी इजैकुलेशन होगा तो यहां से ये तीनों इस ट्यूब से निकलेंगे, किससे, यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा किसके अंदर प्रेजेंट है, ये पेनिस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ, टेस्टिस। टेस्टिस से वो निकल के स्पर्म पहुंचे वैस डिफरेंस के थ्रू, और उसमें क्या क्या ऐड हुआ, सेमिनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड था, ये दोनों ने मिलके क्या किया, इसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड किए। ठीक है, एंड सम फ्रुक्टोज ऐड किया यहाँ पे। तो ये जो सेमिनल फ्लूइड प्लस न्यूट्रिएंट्स ऐड होने के बाद ये बन गया सीमेन। जब कॉपुलेशन होगा, इजैकुलेशन होगा, तो उसके बाद ये जो सीमेन है कहाँ से रिलीज होगा, ये यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज होगा। और यूरेथ्रा किसका पार्ट है, पेनिस का पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब किस लिए हो रहा है, ये स्पर्म रिलीज करने के लिए। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाला पार्ट है। तो इसका अगर हम स्पर्म का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ हेड, वन मिडल पीस जिसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और इसके अंदर हेड में क्या है, न्यूक्लियस होगा, और इसके अंदर हेरिडेटरी मटेरियल होगा, देन अ टेल जो कि इसको स्विम करने में हेल्प करती है। तो जब कभी भी कॉपुलेशन होता है तो मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, जब इसका इजैकुलेशन होगा पेनिस के थ्रू, है ना। तो ये क्या करेगा, अपना जो इजैकुलेशन है वो कहाँ पे डालता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव के पास। तब जाके क्या होता है वहाँ पे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट,
दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसे कि टेस्टिड्स जो थे वो भी पेयर्ड में थे, ठीक है, ये क्या है, मेल गोनेड्स हैं जहाँ से स्पर्म रिलीज हुआ था। अब फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल में भी क्या होता है, ओवरीज होती हैं, ठीक है, ये भी क्या होती हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, जैसे टेस्टिस थे ये भी पेयर्ड थे, और यहाँ पे क्या है, फीमेल में ओवरीज है। तो सबसे फर्स्ट जो पार्ट है इसका क्या है, ओवरी। तो ये क्या होती है, पेयर में होती हैं। तो जैसे कि यहाँ से इसके अंदर क्या होते हैं, एग होते हैं। जब कभी भी एक बेबी गर्ल बॉर्न होती है तो उसके अंदर प्री मैच्योर्ड एग्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्री मैच्योर्ड एग्स होते हैं। जैसे ही प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है, एज ऑफ एडोलेसेंस जब स्टार्ट होती है, तो हर महीने क्या होता है, एक महीने लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज होता है, एक महीने राइट ओवरी से एग रिलीज होता है। तो एग क्या है, एक फीमेल गैमेट है। तो ये ओवरी से क्या होता है, यहाँ से एग रिलीज हुआ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से क्या होते हैं, हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, ठीक है। जैसे कि टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, टेस्टोस्टेरोन। एंड फीमेल क्या करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज करती हैं। वो उनका सेकेंडरी फंक्शन है, बट प्राइमरी फंक्शन क्या है इनका, टू रिलीज गैमेट्स। टेस्टिस का क्या फंक्शन है, स्पर्म प्रोड्यूस करना, एंड ओवरी का क्या है, एग प्रोड्यूस करना। तो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे एग हैं, जैसे एक मेच्योर एग होगा, एग मेच्योर होगा, वो क्या होगा, रिलीज होगा यहाँ से ओवरी से। अब वो ओवरी से निकलने के बाद जाएगा वो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के पास, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। जैसे यहाँ से स्पर्म निकले थे, किसके थ्रू गए थे, वैस डिफरेंस के थ्रू। यहाँ पर क्या, ओवरी से एग निकल के कहाँ पे जाएगा, ये ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे एग यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी प्रोसेस होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये हो गया फैलोपियन ट्यूब। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे क्या है, ये एक तो एग को ट्रेवल करने में हेल्प कर रहा है, देन यहीं पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा। तो इट इज़ द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देन उसके बाद ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, यूटेरस, ठीक है। तो यूटेरस क्या है, एक थिक वॉल होती है ट्रायंगल शेप की, जो कि हेल्प करती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर। देन ये जो यूटेरस है, यूटेरिन वॉल है, उसके अंदर एक छोटी सी ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं सर्विक्स, ठीक है। तो सर्विक्स क्या है, ये ओपनिंग ऑफ यूटेरस। देन उसके बाद एक लॉन्ग ट्यूब है जिसको हम कहते हैं वजाइना, ठीक है। तो जब कभी कॉपुलेशन होता है तो जो सेमेन है यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, देन वो सेमेन यहाँ से स्विम करते करते पहुँचते हैं सर्विक्स के पास, सर्विक्स से स्विम करते करते जाते हैं वो यूटेरस, यूटेरिन वॉल के पास, देन वहाँ से जाते हैं फाइनली वो ओविडक्ट, और यहाँ पर क्या होगा, एग होगा, ठीक है। तो ये हो गया यूटेरस। ओवरी का फंक्शन क्या है, टू रिलीज एग। ओविडक्ट का फंक्शन क्या है, और फैलोपियन ट्यूब का इसको ट्रांसफर करना, एग को रास्ता देना, और इट इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। देन यूटेरस। तो यूटेरस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा, जब जाइगोट बनेगा तो यहाँ पे आके वो इम्प्लांट होगा और इसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। देन उसके बाद है सर्विक्स, ठीक है। तो सर्विक्स क्या है, एक स्मॉल ओपनिंग है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है, यहीं से स्पर्म अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, वजाइना है, एक लॉन्ग ट्यूब है, 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। देन यहाँ पर एक वजाइनल ओपनिंग होती है, ठीक है। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने देख लिया कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। मेल गैमेट बनते हैं टेस्टिस के अंदर, दैट इज स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट बनते हैं ओवरी के अंदर, दैट इज एग। अब उसके बाद फर्स्ट हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो गया। अब सेकंड क्या है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल, एंड सेकंड है एक्सटर्नल
फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल मीन्स बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन क्या है, सिंपल फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड दी बॉडी और आउटसाइड दी बॉडी। अगर वो इनसाइड दी बॉडी है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर मीन्स यहाँ पे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, मैमल्स, ठीक है। देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो ये जितने भी एक्वेस एनिमल्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम क्या करते हैं, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि फ्रॉग है, फिशेस है, वो क्या करते हैं, अपने स्पर्म क्या करते हैं, पानी के अंदर रिलीज कर देंगे, और वहां पर सपोज यहाँ पे फीमेल ने क्या किया, अपने एग्स बहुत सारे प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, पानी के अंदर ही। तो ये भी क्या करेंगे, अपने स्पर्म इसके ऊपर प्रोड्यूस कर देते हैं पानी में, बॉडी के बाहर। तो ये क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है ह्यूमन बींग्स में, यहां से तो क्या निकला, स्पर्म, स्पर्म निकला, कहां पे पहुंचा वो, वजाइना के अंदर, वजाइना से गया वो सर्विक्स, सर्विक्स से ट्रेवल करते हुए स्विम करते, यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल। तो यहाँ से मिलियंस ऑफ स्पर्म निकले, बट फर्टिलाइज सिर्फ एक करता है, यहाँ पे एक एग प्रेजेंट होगा। अब यहाँ से स्विम करते करते जाएंगे, बहुत सारे निकलेंगे, बट वो धीरे धीरे मरते जाएंगे, बिकॉज यहाँ से कुछ अपने आप मर जाएंगे, कुछ यहाँ से जो बॉडी है वो उसको किल कर देगी। देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो भी स्पर्म जा रहा है वो कहाँ पे जाएगा, एग के पास, यहाँ से ट्रेवल करेगा, यहाँ से गया, यहाँ से फिर वो यूट्रस के पास गया, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में गया। तो स्पर्म का अगर हम लोकेशन देखते हैं वो कहाँ से आता है, पहले तो यहाँ से रिलीज होगा, टेस्टिस से निकलेगा, टेस्टिस से कहाँ जाएगा, वेस डिफरेंस, वेस डिफरेंस से उसमें ये दोनों ऐड करेंगे अपना फ्लूइड, एक तो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। देन वो फ्रॉम यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से कहाँ जाएंगे, वो पेनिस से निकल के वजाइना, वजाइना से जाएंगे वो सर्विक्स, सर्विक्स से यूटेरस, यूटेरस से ओवी डक्ट और फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये स्पर्म प्लस एग, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। अब क्या बनाएंगे, ये दोनों फॉर्म करेंगे जाइगोट, जाइगोट फॉर्म करेंगे। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है यहाँ पे, साइट क्या है यहाँ पे, साइट है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो हो गया, जाइगोट बन गया मीन्स डिप्लॉयड सेल बन गया, जाइगोट बन गया। अब उसके बाद होगा क्या, यहाँ पे जाइगोट बनने के बाद स्पर्म और एग दोनों मिल गए, फ्यूज कर गए, उसके बाद जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट क्या होगा, धीरे धीरे डिवाइड भी करेगा, और वो यहाँ से ट्रेवल होके धीरे धीरे आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट है यहाँ पे बना था फैलोपियन ट्यूब के अंदर, अब ये क्या होगा, ट्रेवल करते 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 यहाँ पे पहुंचेगा, किसके पास, यूटेरस के पास, जो कि खुद को प्रिपेयर करे हुई थी कि यहाँ पे क्या आएगा, एक जाइगोट आएगा। इसीलिए क्या होती है, काफ़ी थिक होती है। यहाँ पे क्या है, ब्लड का, ये काफ़ी ब्लड होता है इसके अंदर, म्यूकस और ब्लड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ताकि वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके डेवलपिंग जाइगोट और एम्ब्रियो को। अब ये यहाँ पे आएगा, ट्रेवल करते करते 2-3 दिन में पहुंचेगा यहाँ पे यूटेरिन वॉल के पास, और ये यूटेरिन वॉल पे क्या होगा, ये कहीं पे आके चिपक जाएगा, इस तरीके से इम्प्लांट हो जाएगा। तो ये जो चिपकता है वहां पे जाके ठहरता है, उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो और जाइगोट, है ना। तो जाइगोट का ही क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, और उससे क्या बनेगा, ये एम्ब्रियो, ठीक है। अब यहाँ पे इम्प्लांटेशन तो हो गया, अब इम्प्लांटेशन के बाद होगा क्या, ये जो यूटेरिन वॉल है इस पे डेवलप होगा प्लाजेंटा, इस पे क्या डेवलप होगा, एक प्लाजेंटा क्या है, स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करेगी, एक इस तरीके से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ये, और ये किस पे कनेक्ट है, ये यूटेरिन वॉल पे, ठीक है। पिंकिश इन कलर होता है और ब्राउनिश कलर भी हो जाता है कभी कभी। तो ये क्या करेगी, मदर की वोम से, मीन्स यूटेरस से क्या करेगा, ये न्यूट्रिएंट्स लेगा, न्यूट्रिएंट्स लेके किसको देगा, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को, है ना। यहाँ पे क्या होगा, बेबी डेवलप हो रहा है। तो एम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट है बेबी, और अम्बिलिकल कॉर्ड किससे कनेक्ट है, प्लाजेंटा, और प्लाजेंटा किस पे अटैच है, इस
यूटेरिन वॉल पे। तो प्लासेंटा का फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल का एक्सचेंज भी होता है। तो इट इज ऑल अबाउट प्लासेंटा। ठीक है, तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब इसके बाद इसमें टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है? अब यहाँ पर तो क्या हो गया था? फर्टिलाइजेशन हो गया था। सपोज इन केस यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कॉपुलेशन नहीं हुआ, जैसे एज ऑफ एडोलेसेंस स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या होता है? हर महीने एक एग यहाँ से रिलीज होगा, फिर उसके अगले महीने एक एग इस ओवरी से रिलीज होगा। सपोज अब ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये जो यूटेरस थी ये क्या करती है? खुद को प्रिपेयर करती है ना। तो वो जो साइकिल होता है 28 to 30 डेज का होता है, तो ये खुद को प्रिपेयर करेगी। प्रिपरेशन में क्या होता है? ये थिक हो जाती है, जिसके अंदर काफ़ी सारा ब्लड एंड म्यूकस जमा हो जाता है ताकि नरिशमेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो ये क्या होगा? शेड हो जाएगी, है ना। बिकॉज अब ये पहले तो प्रिपेयर हुआ था, जैसे आप कभी फूड प्रिपेयर करते हो घर पे, अगर उसका यूज़ नहीं हुआ तो वो क्या होगा? ख़राब हो जाएगा, निकल फेंक देंगे आप उसको। तो वैसे यहाँ पे भी क्या होता है? ये जो नरिशमेंट प्रोवाइड हुआ था एग के लिए, प्रिपेयर जो हुआ था, वो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा। अब उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ह्यूमन की जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकाल देती है जब उसका एक पर्टिकुलर पीरियड निकल जाता है। ठीक है, तो जो साइकिल होता है 28 डेज का, तो उसमें कुछ टाइम तक तो ये खुद को प्रिपेयर करेगी। देन जो मिड में क्या है? टाइम होता है इसका फर्टिलाइजेशन का। अगर वो फर्टिलाइज नहीं होगा एग, तो वो एग क्या होगा? यहाँ से रिलीज होकर बाहर निकल जाएगा। वो रिलीज होने के बाद क्या होगा? ये जो थिक वॉल थी ये भी क्या होगी? धीरे धीरे शेड होगी। ठीक है, मेंसेस के शेप में उसकी, जिसको हम कहते हैं मेंसेस, है ना। मीन्स क्या है? उसमें क्या होंगे? टिश्यूज होंगे, ब्लड होगा, म्यूकस होगा, वो धीरे धीरे निकलता है। तो वो टाइम जैसे कि 3 to 7 डेज या किसी किसी का 10 डेज तक भी चला जाता है, तो है ना। तो यहाँ पे जो साइक्लिक चेंजेस आ रहे हैं, तो वो जो साइक्लिक चेंजेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन क्या है? 28 to 30 डेज तक चलता है साइकिल। उसमें क्या होते हैं? अलग अलग फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज में क्या होगा? एग प्रिपेयर हुआ और उसी के साथ में ये वॉल प्रिपेयर हुई। देन टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसके बाद एग निकल गया। एग निकलने के बाद ये जो वॉल थी, थिकनिंग ऑफ वॉल, ये भी क्या होगी? धीरे धीरे निकल जाती है, जिसको हम कहते हैं मेंसेस और मेंस्ट्रुएशन। ठीक है।